हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक चल रहा सी CSE का इनपुट आउटपुट इंटरफेस ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ CPU ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ CPU ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ the bits in the status register are used for status conditions status condition ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ use ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ bits the status register indicate not only the status of data register but also record the errors that may occur during the data transfer ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ status ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜੋ data transfer ਦੇ ਦੌਰਾਨ errors ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਗਾ status register next ਹੈ ਜੀ data बस बफर्स एक ही अंदर ये बस बफर्स बायडायरेक्शनल होंदियां ने बायडायरेक्शनल मतलब दोनों साइड तो ही काम मतलब डाटा नूं ले आंदा लैके आउंदा लैके जांदा दोनों का काम करदियां ने बायडायरेक्शनल डाटा बस टू कम्यूनीकेट विद CPU नाल कम्यूनीकेट करन दे लई यूज़ कीती जांदी मतलब CPU तो विच डाटा बेसिस दा काम ही हुंदा डाटा लैके जाना CPU दे विच जाके स्टोर करना CPU दा लैके आना ठीक है all the control words जिन्ने भी डाटा status information between interface unit and CPU are transferred through these system data buses जिन्नी भी information जो transfer करनी असी CPU तो लैके इंटरफेस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੌਜਿਕ this block generate the necessary control signals for overall device operations जिन्ने भी डिवाइस operations overall perform करने उन्होंने signals जो generate करके दिंदा ਉਹ ਇਹੀ units ਹੁੰਦੀਆਂ blocks ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ all the command from the CPU are accepted through this block ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ CPU command perform ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ block ਦੁਆਰਾ accept ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ it also allow the status of interface unit to be transferred on data buses ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦ ਬਲੌਕ ਐਕਸੈਪਟ CS RD WR ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ RD ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ WR ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲੌਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ and select signals दो signals ਦਿੰਦਾ ਉਹ S1 ਤੇ S0 ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ select ਹੋਏਗਾ from the system address buses ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ signals ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ select ਕਰਦਾ the direction of data transfer over data bus is controlled by read and write signals the read direct the data transfer from interface to the CPU ਰੀਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CPU ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ CPU ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਬੱਸਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ address bus is used to select interface unit ਜਿਹੜੀ address buses ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ select ਕਰਦੀ ਹੈ an external circuit called address decoder decode the address lines and generate the chip select signal to enable the associated interface unit ਜਿਹੜਾ circuit ਆ address decoder ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ decoding ਕਰਨਾ एड्रैस लाइन्स की डिकोडिंग करना एंड चिप ਦੇ ਵਿੱਚ जो सिग्नल ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ सिलेक्ट करना ਤਾਂ जो मतलब ਜਿਹੜੀ इंटरफेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो इन्फॉर्मेशन जानी है कम्युनिकेशन होना गा वो की हो सके पॉसिबल हो सके the two significant line of the address bus ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ significant lines ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ A1 ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A0 are connected with the selected input signals ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ S1 ਜਾਂ S0 ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ these two select inputs are used to select any one of the four registers ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
फंक्शन टेबल ऑफ इनपुट आउटपुट देखो जी, मतलब जो सिग्नल से 002 कोई भी नहीं सिलेक्ट किया तो पोर्ट ए रजिस्टर सिलेक्ट होएगा। जो सिग्नल असी S0 सिलेक्ट कर लेगा पोर्ट बी रजिस्टर 4 रजिस्टर होंगे आ, वैसे 4 रजिस्टर होंगे पोर्ट ए, पोर्ट बी कंट्रोल रजिस्टर ते स्टेटस रजिस्टर। सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वो सिलेक्ट होंगे आ। जे वाना जे आप S1 सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट होएगा, जो दोनों ही सिलेक्ट करते हैं S1 तो S0 तो स्टेटस रजिस्टर सिलेक्ट होएगा। नैक्सट है जी इनपुट बस एंड मैमोरी बस। इनपुट बसिस की होंगी है, मैमोरी बसिस की होंगे ने। कंप्यूटर कंप्राइजेस ऑफ मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। जो कंप्यूटर्स होंगे उन्होंने बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लगे होंगे आ, बनया होंगे जिन्होंने तो ये कंपोनेंट्स होंगे पार्ट्स, इंटरनल भी होंगे एक्सटर्नल पार्ट्स भी होंगे कंप्यूटर के। ए बस इज द कॉमन पाथवे थ्रू विच इनफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर। बस एक यह पाथ आ, ठीक है जी, कॉमन पाथ जिहदे नाल की है इनफॉर्मेशन फ्लो होंगी है, इनफॉर्मेशन एक जगह तो दूसरी जगह की जाती है, लैके जाया जाता इनफॉर्मेशन नूं। ए कंप्यूटर बस इज सिंपली पैरलल कलैक्शन ऑफ कंडक्टर्स दैट कैरी एड्रैस डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन जनरेटर टू अनदर। जिहड़ा कंप्यूटर बस है एक सिंपली पैरलल कलैक्शन ऑफ कंडक्टर्स की बनी होंगी है वो, ठीक है, जिसका काम की होंगे एड्रैसिस कैरी करना, डाटा कैरी करना या फिर सिग्नल्स कैरी करने एक पार्ट तो दूजे पार्ट मतलब कंप्यूटर की एक यूनिट तो दूसरी यूनिट तक लैके जाना। कंप्यूटर बसिस आर ट्रैडिशनली क्लासीफाइड एज इनपुट बसिस एंड मैमोरी बस। कंप्यूटर बसिस दो तरह दी होंगे ने, इनपुट बस एंड मैमोरी बस। इनपुट बस की होंगी है इनपुट आउटपुट बस। Each input output device has its own input output interface unit which is associated with the processor। हर एक input output device का इनपुट डिवाइसिस किहड़े किहड़े होंगे, जिवें कि की जी तुसीं इनपुट करवाउंदे हैं कंप्यूटर दे विच, जिवें कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है जी। आउटपुट डिवाइसिस होंगे जिवें प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनीटर हो गया, दीज आर टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसिस। हर एक डिवाइस का अपना इंटरफेस होंदा, ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस होंदा जिहड़ा कि प्रोसैसर नाल कनैक्ट होंदा। प्रोसैसर लगे होंदा पीसी दे विच, CPU दे विच, ठीक है, प्रोसैसर उहदे नाल कनैक्ट होंदा। The bus that is used to provide communication between processor and several input output devices is called input output bus। एक जिहड़ी बस आ जिहड़ी कि प्रोसैसर ते अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसिस दे विचकार कम्यूनीकेशन का काम करदी आ, उहनूं की बोलदे आ असीं इनपुट आउटपुट बस बोलदे आ, जिहड़ी कि प्रोसैसर मतलब हरेक इनपुट आउटपुट डिवाइस जिहड़ा हुंदा ओहदा एक अपना इंटरफेस हुंदा, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। वो इंटरफेस किहदे नाल कनैक्ट हुंदा प्रोसैसर नाल। तां उस प्रोसैसर ते इनपुट आउटपुट डिवाइस दे विचकारली कड़ी का जो काम करता, मतलब उन्होंने विचकार इनफॉर्मेशन जी ट्रांसफर का काम करता, इनफॉर्मेशन लैके जाना लैके आना, डाटा का ट्रांसफरिंग का काम करता, वो कौन करती है, इनपुट आउटपुट बस करती है। द इनपुट आउटपुट बस कंसिस्ट ऑफ एड्रैस लाइनस। इनपुट आउटपुट बस एड्रैसिस लाइनस होंदियां ने, डाटा लाइनस होंदियां ने, कंट्रोल लाइनस होंदियां ने, ठीक है जी। An interface unit of input device connected to processor via input output bus। जिहड़ा इंटरफेस यूनिट होंदी आ जिहड़ी कि हरेक इनपुट डिवाइस दी होंदी आ, वो प्रोसैसर दे नाल इनपुट आउटपुट बस दे थ्रू ही कनैक्ट होंदी आ। जिवें कि मेरे को दिस इज़ द प्रोसैसर, मेरा प्रोसैसर आ, ये मेरा इत्थे इनपुट डिवाइस आ, जिवें फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस मैं कीबोर्ड ले लैंदी आ, ठीक है, तो उहदे विच ये लगे होंदे आ कंपोनेंट्स लगे होंदे आ, जिवें कि कंपोनेंट ला लो, पार्ट्स ला लो, यूनिट्स ला लो, एड्रैस डिकोडर हो गया, डाटा रजिस्टर हो गया, कंट्रोल सर्किट हो गया, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट इंटरफेसिस नहीं, ठीक है जी, ये इंटरफेस लग्या हैगा। तो ये मतलब प्रोसैसर के नाल जिवें कि इहदा भी एड्रैस पार्ट हो गया, डाटा हो गया, कंट्रोल हो गया, ये पार्ट्स के नाल जो जुड़ते हैं वो इंटरफेस ही आपस जुड़ते हैं, तां ही इनपुट आउटपुट के प्रोसैसर के विचकार कम्यूनीकेशन पॉसीबल है, जे इत्थे इंटरफेस लग्या होगा प्रोसैसर के नाल अटैच होगा। सो ये सी इनपुट आउटपुट बस। तो फीचर्स की होंदे इनपुट आउटपुट बसिस दी विशेषतावां। विशेषतावां बोलते फीचर्स नूं आपां पंजाबी दे विच, इट इज़ यूजली लेंथी एंड स्लोअर, बहुत ज़्यादा लेंथी होंदी है एंड स्लोअर, हौली होंदी है, प्रोसैसिंग स्लो होंदी है। इट डज नॉट इंटरफेस डायरैक्टली टू मैमरी, मैमरी नाल डायरैक्टली इंटरफेस नहीं करते हैगे। इट कनैक्ट ए वाइड रेंज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसिस दैट वेरी इन लेटेंसी एंड बैंडविड्थ करैक्टरिस्टिक्स टू प्रोसैसर्स। काफ़ी ज़्यादा रेंज दे विच होंदियां ने, ठीक है जी, ये वालियां इनपुट आउटपुट डिवाइसिस दी काफ़ी ज़्यादा रेंजेस होंदी है, मतलब वर्जनस अलग अलग होंदे हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल डाटा रेट्स,
डिफरेंट रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ डिफरेंट रेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ suitable for asynchronous data transfer ज़्यादातर ये असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर लिए ही यूज़ किए जाते हैं असिंक्रोनस मतलब होंगे कि इको टाइम के उपर बहुत सारे डाटा मतलब पैरेलली नहीं कर सकते है ट्रांसफर असिंक्रोनस उन्होंने बोलते हैं इट प्रोवाइड्स एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो तुम एक्सपेंशन स्लॉट लगाना चाहते हैं मतलब तुहानूं बाद लोड़ पैंदी है तो तुसीं उहनूं एक्सटेंड उहदी फ्लैक्सीबिलिटी है एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लगा सकते इट फॉलो ए बस स्टैंडर्ड is that SCSI A वाला standard ही follow करते it offers wide range in the data bandwidth and it is usually a design specific the design that does not know all the devices that must connect to the input output device next है जी memory bus जी memory bus होंगी है एक है जी bus that connect a processor to memory जी के connect कर दी है processor नु memory नाल it is also called system bus in system bus we बोलते like input output bus the memory bus also contain address data and control lines input output buses ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ memory ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ address ਜਿਹੜੀ memory bus ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ address data ਦੇ control lines ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ students ਮੈਮਰੀ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਲਾਈਨਸ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਡਾਟਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ एड्रैस और एड्रैस जो प्रोसैसर है एक एड्रैस दे देगा इतने एड्रैस लाइन के उपर दे देगा कि इस एड्रैस के उपर मैं मैमरी में जाना चाहना गा एट द सेम टाइम जो प्रोसैसर ऑल्सो सेंडिंग कमांड सिग्नल टू कंट्रोल लाइनस कंट्रोल लाइन में एक कमांड सिग्नल दे देगा कि रीड करवाना राइट करवाना की करना गा सेंडिंग सिग्नल्स ऑन द रीड कंट्रोल लाइन के उत्ते जो सेंडिंग करता अलो द प्रोसैसर टू रिसीव डाटा फ्रॉम एड्रैस्ड मैमरी लोकेशन ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਂਡਿੰਗ ਏ ਸਿਗਨਲ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ठीक है राइट का मतलब होंगे प्रोसैसर कुछ डाटा मैमरी में रखना चाहता बिच सेव करना चाहता फीड करना चाहता तो वह राइट कंट्रोल लाइन के उपर सिग्नल सेंड करेगा अलाउ द प्रोसैसर टू ट्रांसमिट डाटा टू एड्रैस मैमरी लोकेशन द डाटा बस मूव डाटा बिटवीन प्रोसैसर एंड द मैमरी तो फिर इस तो बाद जो डाटा बस होंगी है वह काम की होंगे उस डाटा को मूव करवाना बिटवीन द मैमरी फ्रॉम मैमरी टू प्रोसैसर एंड फ्रॉम प्रोसैसर टू मैमरी वाइस वर्सा सो नैक्सट स्टूडेंट जो अज की वीडियो में आप इन्ने करा नैक्सट वीडियो में आप फीचर्स करा मैमरी वास्ते की होंगे ठीक है जी ओके स्टूडेंट्स नैक्सट वीडियो आप डिस्कस करते हैं नैक्सट ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो